جب مختار نے اہلی بیت کے دشمنوں کے خلاف انتقام لینا شروع کیا، اس کے گرد ایک فضا قائم ہوئی جس میں حقیقت اور مبالغہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ بعض حاشیہ نشینوں اور پیروکاروں نے اسے نبی یا وصی کے بغیر ممکن نہ ہونے والا عظیم انسان قرار دیا، جبکہ کچھ اس کے دعوے کو حقیقت اور خرافات کے درمیان پرکھتے رہے۔ یہ تمام واقعات تاریخی دستاویزات اور روایات پر مبنی ہیں، ہماری رائے نہیں بلکہ وہ منظرنامہ جو وقت نے محفوظ کیا۔ اس موسم میں ہم دیکھیں گے کہ مختار نے کس طرح اپنے دعوی نبوت کو ظاہر کیا، کس طرح اس کے پیروکار اسے ماننے لگے اور دشمن اس کی جرت اور چالاکیوں سے کیسے متاثر ہوئے۔ شروع میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ مختار کو اہل بیت سے کوئی خاص محبت یا ہمدردی نہ تھی۔ خارجی المذہب ہونے کی وجہ سے اس کا دل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عناد سے بھرا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ مصلحت اور ذاتی مفاد کی خاطر اس نے خود کو شیعہ اور اہل بیت کا وفادار ظاہر کیا اور امام حسین کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے اپنے مہم چلائی۔ یزیدی دشمنوں پر اس کا حملہ دراصل محبت نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے اور حکومت کے شوق کا کھیل تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے ایک دن مختار سے پوچھا، اے ابو اسحاق، تم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ تمہیں تو ان سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ مختار نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ مروان شام پر قبضہ جما چکا ہے، عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں حکومت قائم کر لی ہے، مجدہ یمامہ پر قابض ہو گیا ہے اور ابن حازم نے خراسان دبا لیا ہے، تو میں خاموش بیٹھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے جدوجہد کی، ملکوں پر عمل دخل کیا اور ان کا ہم پایا بن گیا۔ مختار نے اہل بیت کے محبان اور شیعہ علی کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے نہ صرف اپنی فتح کی بنیاد رکھی بلکہ دشمنان اہل بیت سے مظلومین کربلا کا انتقام بھی لیا اور اہل بیت کے لیے قابل فخر احسان انجام دیا۔ جب مختار کوفہ میں قتل ہوا تو مکہ میں عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، کیا آپ نے اس کذاب کا حال سنا ہے؟ ابن عباس نے پوچھا، کذاب کون؟ ابن زبیر نے جواب دیا، مختار۔ ابن عباس نے کہا، ہاں میں مختار کے قتل کا حال سن چکا ہوں۔ ابن زبیر نے کہا، لگتا ہے آپ اسے کذاب کہنا پسند نہیں کرتے اور اس کی ہلاکت پر آپ کو دکھ ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، ہاں مختار وہ شخص تھا جس نے ہمارے قاتلوں کو سزا دی، ہمارے خون کا بدلہ لیا اور ہمارے سینوں کی آگ بجھائی۔ اس کی خدمت کا صلہ یہ نہیں کہ ہم اسے گالیاں دیں یا اس کی موت پر خوشی کا اظہار کریں۔ کوفہ میں ہوا ایک ایسا منظر جو تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ مختار نے ان قاتلوں کے خون کا بدلہ لینا شروع کیا جو امام حسین کے جسم و جان پر ظلم ڈھائے تھے۔ شہر کے بازار میں خبر گردش کرنے لگی کہ مختار نے یزیدیوں کے گلے پر چھری رکھ دی ہے اور اہل بیت کے محبان کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے۔ دور دور سے ابن سبا کے پیروکار اور شیعہ کوفہ کی طرف بڑھائے۔ مختار کے دربار میں آنے والے خوشامدی، چاپلوس اور تعلقات کے خواہاں لوگ مدح و ستائش کے پھول بکھیرنے لگے۔ ہر بات میں اس کی عظمت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا جاتا۔ بعض لوگ تو یہاں تک بولنے لگے کہ ایسا عظیم کارنامہ جو اعلیٰ حضرت کی ذات قدسی سے ظہور میں آیا، وہ کسی نبی یا وصی کے بغیر کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ خوشامد اور تملق مختار کے دل میں غرور اور تکبر کے جراثیم بن گیا۔ دن بدن یہ جذبات بڑھتے گئے اور آخرکار مختار نے اپنی جرت کی حدیں پار کر دیں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس دن سے وہ اپنے خطوط اور مراسلات میں خود کو مختار رسول اللہ لکھنے لگا۔ دعوی نبوت کے ساتھ مختار یہ بھی کہتا تھا کہ خدائے برتر نے اس میں اپنا وجود ڈالا ہے اور جبرائیل امین ہر وقت اس کے پاس آتے ہیں، لیکن تقدیر نے اس کا راستہ روک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر نے بصرہ کی فوج کے ساتھ کوفہ پر حملہ کیا اور مختار کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے مختار نے بصرہ پر قبضہ کرنے کے لیے چالاکیوں اور سازشوں کا جال بچھا رکھا تھا اور وہاں کی طاقتور شخصیات کو اپنے ساتھ باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار بصرہ کے رئیس مالک نے از راہ مذاق زیاد سے کہا، مختار تمہیں دنیا و آخرت کی نعمتیں دے رہا ہے، بس اب کسی چیز کی کمی ہے؟ زیاد ہنس پڑا اور مذاقاً بولا، بھائی میں وعدوں پر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، جو شخص ہمارے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر رکھے گا ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔
इसी दौरान मुख्तार ने अहनफ इब्न कैस नामी रईस को खत भेजा। अस्सलामु अलैकुम, बनी मुज़िर और बनी रबिया का बुरा हो। अहनफ, तुम अपनी कौम को ऐसे दोज़ख की तरफ ले जा रहे हो कि वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। तकदीर बदल नहीं सकता, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुझे कज़्ज़ाब कहते हो। मुझसे पहले भी अंबिया को झुटलाया गया और मैं उनमें अक्सर से बरतर नहीं हूँ। अगर मुझे काज़िब कहा गया तो क्या हुआ? एक मर्तबा किसी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा कि मुख्तार नुज़ूल वही का मुद्दई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, मुख्तार सच कहता है। खुद खुदाए बरतर ने इस वही की इत्तला इस आयत में दी है। शयातीन अपने दोस्तों पर वही नाजिल किया करते हैं। झूठे मुद्दई जो रब की ताईद और इलाही नुसरत से महरूम होते हैं, अपनी बात को सच दिखाने के लिए हीला और चालाकियों का सहारा लेते हैं। मुख्तार भी इन्हीं उसूलों के तहत अपनी मनगढ़ंत वही, मोजज़ात और पेशगोइयों को पूरा करने के लिए अजीब व गरीब तदबीरें इस्तेमाल करता रहा। एक दिन इसने एक लंबा चौड़ा अरबी इल्हाम तैयार किया, जिसके आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे, आसमान के रब की कसम, ज़रूर आग आसमान से नाजिल होगी और अस्मा का घर जल जाएगा। जब अस्मा बिन खारजा को ये मुख्तारी इल्हाम मिला तो इसके दिल में खौफ ने घर कर लिया। इसने फौरन अपने घर का सारा मालो असबाब दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। लोग हैरान होकर पूछने लगे, क्या वजह है कि तुम अपने घर को खाली कर रहे हो? अस्मा ने जवाब दिया, मुख्तार ने पेशगोई कर दी है कि मेरा मकान जल जाएगा। अब वो अपना इल्हाम पूरा करने के लिए ज़रूर आग लगाएगा। रात की तारीकी में मुख्तार ने एक शख्स भेजा जो खामोशी से आग लगा दे, और मुख्तार अपने हल्काए मुरीदीन के सामने खुशी से डींगे मारने लगा। मेरी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। लोगों की आंखों के सामने देखते ही देखते आग ने मकान को लपेट में ले लिया, जैसे आसमान से आग उतर आई हो, और मकान भस्म हो गया। हर कोई हैरान और परेशान रह गया कि कैसे मुख्तार ने अपनी चालाकी से पेशगोई को हकीकत का रूप दे दिया। अल्लाह ताला की कुदरत अजीबो गरीब है और तारीख में कई मर्तबा कमज़ोर और कलील तादाद वाले लोगों की मदद के लिए ऐसी निशानियां भेजी गई हैं जो आम इंसानों के लिए नाकाबिले यकीन लगती हैं। मुख्तार सख्फी ने भी अपनी फ़ौज के लिए एक मुनफरिद चाल चलकर अपने पैरोकारों को हौसला दिया और दुश्मन के खौफ को अपने फ़ायदे में बदल दिया। जब मुख्तार ने इब्राहीम बिन अश्तर को एक जंगी मुहिम पर मौसल भेजा तो खुद पैदल चलने का फैसला किया। इब्राहीम ने कहा, अबू इसहाक सवार हो जाएं, ये तेज़ और आसान होगा। मुख्तार ने जवाब दिया, नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे कदम हक की नुसरत में निशान बने, ताकि लोग याद रखें कि हमने हर कदम अल्लाह की मदद पर रखा। यूं वो 2 फरसंग पैदल चलकर लश्कर के साथ शामिल हुआ, हर कदम पर हौसला और एतमाद बखेरता हुआ। विदा के वक्त मुख्तार ने अपनी फौज से कहा, खुदाए कुद्दूस ने वादा फरमाया है कि मैं कबूतरों की शक्ल में फरिश्ते भेजकर तुम्हारी मदद करूंगा। लश्कर के रुखसती के बाद उसने अपने खास गुलामों को चंद कबूतर दिए और हुक्म दिया कि जब लड़ाई शुरू हो तो ये कबूतर लश्कर के ऊपर से उड़ाए जाएं। गुलामों ने ऐसा ही किया और अचानक फौज के दरमियान एक अजीब शोर और हलचल मच गई, जैसे आसमान से मदद नाजिल हुई हो। इस नज़ारे ने फौज के हौसले दोचंद कर दिए और वो दुश्मन पर इतने बेखौफ हमले करने लगे कि दुश्मन की सफ़ें बिखर गईं और लश्कर शिकस्त खाकर भाग गया। इसी दौरान एक खारजी कैदी भी अपनी होशियारी से बच निकला। जंग के बाद बहुत से दुश्मन मारे गए और बहुत से कैदी बने। उन्हीं में सुराका बिन मरदास बारती भी शामिल था। सुराका जानता था कि मुख्तार उसे देखकर फौरन कत्ल का हुक्म देगा, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए एक ज़हीन चाल अपनाई। जब पहरेदार उसे मुख्तार के सामने ले आए तो सुराका ने कहा, न तुम लोगों ने हमें शिकस्त दी न कैद किया, बल्कि जो हमें मारने आए वो असल में आसमानी फरिश्ते थे जो अबलक घोड़ों पर सवार होकर तुम्हारी फौज के लिए लड़ रहे थे। यह सुनकर मुख्तार खुशी से झूम उठा और सुराका को आज़ाद करने का हुक्म दिया। उसने कहा, तुम मिंबर पर जाकर यह वाकया सबके सामने बयान करो। सुराका ने मिंबर पर जाकर वही बयान दोहराया। बाद अज़ां सुराका बसरा गया और मुसअब बिन ज़ुबैर की फौज में शामिल हो गया। उसने मुख्तार को 3 मिसरे भेजे तंजिया अंदाज में। मैंने सफ़ेद और स्याह यकरंगी के घोड़े देखे, ऐसी चीज़ें जो दूसरों ने नहीं देखीं। हम दोनों ये खुराफात समझते हैं। मैंने तुम्हारी वही से इनकार किया और मन्नत मान ली और रुजू कर लिया, और अब जब तक दम में दम है तुमसे अरबदा खाह रहूंगा। कूफा और मक्का के वाक़यात के बाद तारीख़ इस्लाम के इस दौर में एक नया बाब खुलता है,
जिसमें फितनों, सियासी चालों और इक़्तिदार की कशमकश ने दीनी जज्बे के साथ साथ इंसानी कमज़ोरियों को भी आश्कार किया। मुख्तार सख्फी की शख्सियत अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी हरकत व अक़वाल ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इख्तलाफ की एक नई लहर पैदा कर दी। कुछ लोग इसे इंतकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दावेदार समझते रहे, तो बाज़ ने उसके अज़ाइम में दुनियावी इक़्तिदार की ख्वाहिश देखी। इसी पस मंज़र में वो वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने न सिर्फ इराक़ बल्कि हिजाज़ मुक़द्दस तक को मुतासिर किया। जब अब्दुल्ला बिन सबा ने एक ऐसा नापसंदीदा मसलक कायम किया जिसमें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु और नेक लोगों की बेअदबी को इबादत का हिस्सा समझा जाने लगा, तो मुसलमानों में फितरी तौर पर इस गुरोह के खिलाफ शदीद रद्द अमल पैदा हुआ। इस मुखालिफत के बाद इब्न सबा के पैरोकारों ने अपने मसलक को मोहब्बत अली के लिबादे में छुपाना शुरू कर दिया। यूं ये जमात दो हिस्सों में बट गई, एक शिद्दत पसंद यानी गाली और दूसरे निस्बतन मोतदिल। मुख्तार के दौरे हुकूमत तक कूफा में दोनों गुरोह मौजूद थे और शिद्दत पसंद अनासर को मुख्तार की सरपरस्ती हासिल होने के बायस उनके नज़रियात में मजीद इजाफा होता गया। अल्लामा तबरी के बयान के मुताबिक उस ज़माने में कूफा में दो औरतें हिंद बिनते मुखल्लिफा और लैला बिनते कुमामा ऐसी थीं जिनके घरों में ये शिद्दत पसंद लोग जमा होकर अपने मामलात पर बातचीत करते थे। लैला का भाई रिफा बिन कुमामा खुद इस नज़रिए का हामी नहीं था, इसी वजह से उसकी बहन उससे नाखुश रहती थी। जब अबू अब्दुल्ला जदली और यजीद बिन शराहील ने इन हालात को देखा तो उन्होंने मक्का मुकर्रमा में मौजूद हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को एक ख़त लिखकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के साहिब-ए-ज़ादे थे और उनकी वालिदा बनु हनीफा कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं। इसी निस्बत से वो इब्न हनफिया के नाम से मारूफ हुए। उन्होंने यजीद बिन शराहील के हाथ अहले कूफा के नाम एक नसीहत आमेज़ ख़त भेजा जिसमें इरशाद फरमाया, ये ख़त मोहम्मद बिन अली की जानिब से उन लोगों के नाम है जो कूफा में रहते हैं। तुम्हें चाहिए कि मस्जिदों और मजालिस में जमा होकर अलानिया और खुफिया तौर पर अल्लाह को याद करो, ईमान वालों के सिवा किसी को अपना रहनुमा ना बनाओ और झूठे दावे करने वालों से दूर रहो। नमाज और रोज़े की पाबंदी करो और यकीन रखो कि मखलूक में कोई ऐसी ज़ात नहीं जो अल्लाह के हुक्म के बगैर नफ़ा या नुकसान पहुँचा सके। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने इस ख़त में इशारतन मुख्तार के गलत दावों से भी ख़बरदार किया और अहले कूफा को उनके असर से बचने की तलकीन फरमाई। जब मक्का मुकर्रमा में हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के पास मुसलसल ये ख़बरें पहुँचने लगीं कि मुख्तार दीन इस्लाम में बिगाड़ पैदा कर रहा है और उसकी सरगर्मियों से फितना और इंतशार बढ़ता जा रहा है, तो आपने खुद इराक़ जाने का इरादा फरमाया ताकि हालात का करीब से जायज़ा लिया जा सके। दूसरी जानिब जब मुख्तार को यह खबर मिली कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया इराक़ आने वाले हैं तो वो सख्त खौफज़दा हो गया। उसे अंदेशा था कि अगर इब्न हनफिया कूफा पहुंच गए तो वो तमाम लोग जो उसके असर में आ चुके हैं उनसे अलग हो जाएंगे और उसकी हुकूमत और असर व रसूख ख़त्म हो जाएगा। ये सोचकर मुख्तार ने एक हैरानकुन तदबीर इख्तियार की। उसने अवाम के सामने अलानिया कहना शुरू किया, हम मेहदी की बैत पर कायम हैं, लेकिन सच्चे मेहदी की एक निशानी होती है, जो शख्स इस अलामत का हामिल हो वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक हकीकी मेहदी होगा। जब लोगों ने दरियाफ्त किया कि वो अलामत क्या है तो मुख्तार ने कहा कि उस शख्स पर तलवार का वार किया जाए, अगर तलवार उसे नुकसान ना पहुंचा सके तो वही मेहदी है। जब ये बात हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के इल्म में पहुंची तो आपको यकीन हो गया कि मुख्तार का ये तरीक़ा दरअसल आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकता है। चुनाचे आपने इराक़ जाने का इरादा तर्क फरमा दिया ताकि ख़ुद को मुमकिना साजिश से महफूज रख सकें। ये माखज़ किताबुल फ़र्क़ बैनुल फ़िरक़ सफ़ा नंबर 33 है। जब इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार की आंख ज़ख्मी करके उसे कूफा से निकल जाने पर मजबूर किया तो मुख्तार मक्का मुकर्रमा चला गया। वहां उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथ पर बैत की और उनकी तरफ से उस शामी लश्कर का मुकाबला किया जो यजीद बिन मुआविया ने हसीन बिन नमीर सकूनी की क़यादत में मक्का मुअज़्ज़मा भेजा था। ये लश्कर यजीद की वफ़ात के बाद मुहासरा ख़त्म करके वापस दमिश्क चला गया। अगरचे मुख्तार ने बज़ाहिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की इताअत कबूल की थी, मगर जल्द ही उसने उनके खिलाफ बगावत कर दी। वो कूफा वापस आया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मुकर्रर करदा गवर्नर अब्दुल्ला बिन मुती को निकाल कर कूफा की हुकूमत खुद संभाल ली। जब मुख्तार ने कूफा में अपना इक़्तिदार मजबूत कर लिया तो उसने अपने ज़ुबैर को एक ख़त लिखा कि अगर आप मुझे 10 लाख दिरहम अता फरमाएं तो मैं अब्दुल मलिक बिन मरवान पर हमला करके
आपको शाम की जंगी मुसीबतों से निजात दिला दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यह सुनकर फरमाया, सकीफ का ये चालाक आदमी आखिर कब तक मेरे साथ धोखेबाजी करता रहेगा? जब यह चाल नाकाम हुई तो मुख्तार ने एक और मंसूबा बनाया ताकि चालाकी के जरिए हिजाज पर कब्जा हासिल कर सके। यजीद की मौत के बाद शाम में मरवान बिन हकम की हुकूमत कायम हो गई थी। मरवान की वफात के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्ते हुकूमत पर बैठा। अब्दुल मलिक ने इरादा किया कि मक्का मुअज़्ज़मा की तस्खीर का वो काम जो यजीद की मौत से रुका हुआ था अब मुकम्मल किया जाए। इस मकसद के लिए उसने एक बड़ा लश्कर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुकाबले पर रवाना किया, जो तवील अरसे तक वादी अल कुरा में क़याम वज़ीर रहा। ये हालात देखकर मुख्तार ने बड़ी अकीदत और खैरख्वाही का इजहार करते हुए हजरत इब्न जुबैर को लिखा, मुझे मालूम हुआ है कि अब्दुल मलिक बिन मरवान आपके खिलाफ लश्कर कशी की तैयारी कर रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए अपनी फौज रवाना कर सकता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब में फरमाया, अगर तुम वाकई मेरी इताअत में हो तो कूफा में लोगों से मेरी बैयत लो और मेरी मदद के लिए अपनी फौज वादी अल कुरा में रवाना करो ताकि वो दुश्मन के मुकाबले में लड़ सके। ये खत पाते ही मुख्तार ने शर्जील बिन वर्स हमदानी को 3000 फौजियों के साथ मदीना की तरफ रवाना किया और उसे हुक्म दिया कि वहां पहुंचकर मजीद हदायत का इंतजार करे। असल में मुख्तार की नीयत कुछ और थी। वो चाहता था कि ये फौज मदीना पर कब्जा कर ले, फिर कूफा से अपना नुमाइंदा वहां हाकिम मुकर्रर करे और बाद अज़ां शर्जील अपनी फौज के साथ मक्का पर चढ़ाई करे ताकि अब्दुल्ला बिन जुबैर को घेर लिया जाए। शर्जील 3000 फौज के साथ मदीना रवाना हुआ। ये खबर जब इब्ने जुबैर को मिली तो वो फिक्रमंद हुए कि कहीं मुख्तार ने कोई नया फरेब न किया हो। लिहाजा उन्होंने अब्बास बिन सहल बिन साद को 2000 सिपाहियों के साथ मदीना भेजा ताकि हालात का जायजा लिया जा सके। जब अब्बास मदीना के करीब पहुंचे तो देखा कि मुख्तार की फौज भी वहीं आ पहुंची है। शर्जील ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, मैमना और मैसरा मजबूत किए और पानी के चश्मे पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ अब्बास की फौज अभी मुंतशिर हालत में थी और जंगी सफबंदी नहीं कर पाई थी। रकीम के मकाम पर अब्बास और शर्जील की मुलाकात हुई। अब्बास ने कहा, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं। दोनों अलग हो गए। अब्बास ने पूछा, क्या तुम अब्दुल्ला बिन जुबैर की इताअत में हो? शर्जील ने जवाब दिया, हाँ मैं उनकी इताअत में हूं। अब्बास ने कहा, तो फिर वादी अल कुरा में हमारे दुश्मन के मुकाबले पर हमारे साथ चलो। शर्जील ने जवाब दिया, मुझे इसके लिए कोई हुक्म नहीं दिया गया। मुझे सिर्फ ये कहा गया है कि मदीना पहुंचकर क़याम करूं और मजीद हदायत का इंतजार करूं। अब्बास ने नरमी से कहा, अगर तुम वाकई इब्ने जुबैर के ताबे हो तो मैं उनकी जानिब से हुक्म लाया हूं कि तुम अपनी फौज समेत मेरे साथ वादी अल कुरा चलो। शर्जील ने इनकार करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी इताअत का हुक्म नहीं दिया गया। अब्बास को उस वक्त यकीन हो गया कि शर्जील के इरादे दुरुस्त नहीं, मगर उसने अपनी चाल जाहिर नहीं की। इख्तिताम गुफ्तगू पर अब्बास ने कहा, अच्छा जो तुम मुनासिब समझो करो, मैं जल्द ही वादी अल कुरा को रवाना हो जाऊंगा। बादज़ा अब्बास ने पानी के करीब क़याम किया और शर्जील के लिए तोहफे भेजे, आटा, गोश्त और कुछ कीमती अशिया। उस वक्त शर्जील के लश्कर के पास रसद खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये ज़ियाफ़त कबूल कर ली। फौज खाने पकाने और पानी लाने में मसरूफ़ हो गई और उनकी जंगी तरतीब बिखर गई। अब्बास ने मौका देखकर अपनी फौज में से 1000 बहादुर सिपाही मुंतखब किए और शर्जील के कैंप पर अचानक हमला कर दिया। शर्जील ने खतरा महसूस करके अपनी फौज को पुकारा, मगर अभी 100 सिपाही भी जमा ना हो पाए थे कि अब्बास का लश्कर पहुंच गया। शर्जील चीखने लगा, ए हिज़्बुल्लाह, आओ और इन जालिमों से लड़ो जो शैतान के पैरोकार हैं। लेकिन उसकी आवाज़ बेअसर रही। अब्बास अपने 1000 जानबाजों के साथ टूट पड़ा। शर्जील अपने 70 साथियों समेत मारा गया। अब्बास की फौज ने बाकी इराकी लश्कर को चुन चुन कर ख़त्म कर दिया। 3000 में से सिर्फ 200 सिपाही जिंदा बचे जो भागकर इराक की तरफ निकल गए, मगर उनमें से ज़्यादातर रास्ते में मारे गए। जब यह खबर मुख्तार तक पहुंची तो वो कहने लगा, इन नाफरमान फाजरों ने खुदा के बरगुजीदा बंदों को कत्ल कर दिया, मगर यह सब तकदीर इलाही थी जो पूरी हुई। तारीख़ इब्न जरीर तबरी जल्द 7 सफ़हात 135 और 136 माखूज़ बेख्तिसार। मुख्तार के मरने के बाद उसके पैरोकारों ने एक मुस्तकिल जमात कायम की जो कैसानिया के नाम से मशहूर हुई। कैसानिया की वजह तस्मिया के बारे में मौरिखीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ मौरिखीन के मुताबिक खुद मुख्तार का असल नाम कैसान था। दूसरों का कहना है कि कैसान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के एक ग़ुलाम का नाम था, जिसने मुख्तार को इस वक्त रहनुमाई दी जब वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों से बदला लेने में सरगर्म था। इसी निस्बत से मुख्तार के मानने वालों को कैसानिया कहा जाने लगा। बाद में कैसानिया मुख्तलिफ शाखों में बट गए, मगर 2 बुनियादी अकायद पर सब मुत्तफ़िक़ थे: मोहम्मद बिन हनफिया को इमाम मानना
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ابتدائی اطاعت اور تسلیم کا قائل نہ ہو اسے گمراہ سمجھنا۔ مختار بھی اپنی دعوت میں لوگوں کو محمد بن حنفیہ کی امامت کی طرف بلاتا تھا۔ کیسانیہ کے اندر یہ اختلاف بھی پایا جاتا تھا کہ امام محمد بن حنفیہ کی امامت کا آغاز کب ہوا۔ بعض کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد محمد بن حنفیہ ہی امام بنے۔ وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کا علم یعنی پرچم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ حضرت علی کے بعد پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام بنے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو انہوں نے امامت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے سپرد کی۔ کیسانیہ کی کئی شاخیں وجود میں آئیں، ان میں سے ایک اہم شاخ قریبیہ تھی جو ابو کرب زریر کے پیروکار تھے۔ اس گروہ کا عقیدہ تھا کہ امام محمد بن حنفیہ زندہ ہیں، ان پر موت طاری نہیں ہوئی اور وہ اس وقت جبل رضوی میں موجود ہیں۔ ان کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے سامنے دو چشمے بہتے ہیں، ایک پانی کا دوسرا شہد کا، وہ انہی چشموں سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دائیں طرف ایک شیر اور بائیں طرف ایک چیتا پہرا دے رہے ہیں۔ یہ دونوں جانور ان کی حفاظت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ انہیں ظہور اور خروج کا حکم ملے۔ قریبیہ کے مطابق محمد بن حنفیہ ہی مہدی موعود ہیں۔ بعض دوسرے کیسانیوں کا عقیدہ تھا کہ محمد بن حنفیہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کے بعد امامت کس کو ملی اس بارے میں وہ خود اختلاف رکھتے تھے۔ کچھ کے نزدیک ان کے بعد علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام ہوئے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ امامت محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کو ملی۔ ایک اور گروہ جسے راوندیہ کہا جاتا ہے یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ ابو ہاشم نے اپنی وصیت کے مطابق امامت محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب کو منتقل کر دی۔ کوفہ کی سرزمین پر خوف کی لہر دوڑ چکی تھی، گلیوں میں سناٹا تھا، دروازے بند تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی وحشت تیر رہی تھی۔ لوگ دبے لہجوں میں بات کرتے، ہر چہرے پر بے یقینی کا سایہ تھا، نہ کوئی مسکراتا نہ کوئی کسی پر بھروسہ کرتا، جیسے شہر خود اپنے انجام کا انتظار کر رہا ہو۔ طاقت اور بغاوت کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی، ایک طرف مختار کا جنون، دوسری طرف بصرہ سے اٹھتا ہوا انتقام کا طوفان۔ کہا جاتا ہے اس وقت زمین خود لرزتی تھی جب کوئی نام لیتا مصعب بن زبیر یا مختار بن ابی عبید کا۔ یہ وہ دن تھے جب وفاداری اور غداری کا فرق مٹ چکا تھا، ہر شخص خوف کے سائے میں سانس لے رہا تھا، اور تاریخ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ کوفہ کا بادشاہ کون بنے گا اور کس کا خون اس مٹی میں رچ جائے گا۔ ابراہیم بن اشتر کوفی مختار کا سب سے قریبی ساتھی اور اس کی قوت کا ستون تھا۔ جو بھی عزت، فتح اور عروج مختار کو نصیب ہوا وہ سب دراصل ابراہیم ہی کی شجاعت، عزم اور عقل و تدبیر کی دین تھی۔ جہاں وہ جاتا بہادری کے پرچم لہرا دیتا اور جس محاذ پر قدم رکھتا کامیابی خود بڑھ کر اس کے استقبال کو آتی۔ ہر جنگ میں وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا اور مختار کے جھنڈے کو بلندیوں تک پہنچا دیتا۔ مگر تقدیر کا ایک موڑ ایسا بھی آیا جب یہی ابراہیم جو کل تک مختار کا بازو تھا اس سے جدا ہو گیا۔ وہ موصل میں جا بیٹھا اور دور سے دیکھتا رہا کہ کس طرح مختار کی قسمت کا سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کی طاقت کا درخت جڑ سے اکھڑتا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مصعب بن زبیر جو بصرہ کا گورنر تھا موقع سے فائدہ اٹھا کر کوفہ پر چڑھا آیا۔ اس کے تلوار نے وہ کام کر دکھایا جو دشمن برسوں میں نہ کر سکے، مختار کی حکومت کو مٹا دیا۔ مشہور مورخین جیسے ابن جریر طبری اور ابن اسیر نے یہ تو لکھا کہ ابراہیم نے مختار کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کیوں۔ اس راز سے پردہ علامہ عبد القاہر بغدادی نے اٹھایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ مختار کے ساتھ ہی مختار نے کھلے عام نبوت اور وحی کا دعویٰ کیا ہے تو ابراہیم سخت ناراض ہو گیا۔ اس نے مختار کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے جزیرہ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ الفرق صفحہ نمبر 35۔ ادھر مصعب بن زبیر نے یہ حالات دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب مختار کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ دوسری طرف کوفہ کے سردار پہلے ہی مختار سے ناراض تھے۔ ابتدا میں وہ اس کے ساتھ تھے کیونکہ مختار نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف علم انتقام بلند کیا تھا، اور جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا تھا وہ مختار کی اس مہم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔
मगर रफ्ता रफ्ता कूफा के बड़े सरदार मुख्तार के तर्ज अमल से नाला होने लगे। जब इब्राहिम उसके साथ था तो मुख्तार ने उन्हीं सरदारों की बगावत को इब्राहिम के जोरे बाजू से दबाया था। उस वक्त वो सब वक्ती तौर पर खामोश हो गए, मगर दिलों में इंतकाम की चिंगारी दबी रही। अब जब इब्राहिम ने मुख्तार का साथ छोड़ा तो वही चिंगारी शोला बन गई। कूफा के सरदारों के दिलों में नफरत और बदले की आग भड़क उठी। उन्होंने अहद किया कि अब वो मुख्तार को नेस्तो नाबूद करके दम लेंगे। यही वो लम्हा था जब मुसब बिन जुबैर की फौजें कूफा की तरफ बढ़ीं और मुख्तार, जो कभी फातिह मैदान था, अब अपने ही शहर में तन्हा रह गया। कुछ हजीमत खाए हुए सरदार शबस बिन रबई, मोहम्मद बिन अशत और चंद और लोग अपने माथे पर जिल्लत का निशान लिए बसरा पहुंच गए ताकि वहां के हुक्मरान मुसब बिन जुबैर को भड़काएं। सबसे पहले शबस बसरा आया और वो एक अफसोसनाक मंजर के साथ आया था। खच्चर पर सवार था जिसकी दुम और कान कटी हुई थीं, उसकी कबाब फटी हुई थी और वो जोर जबरदार आवाज में पुकार रहा था, या गौसा, मदद करो, फरियाद सुनो। हाजिरीन ने फौरन मुसब को आगाह किया कि एक आदमी दरवाजे पर फरियाद कर रहा है और वो ऐसी हालत में है। जब मुसब ने शक्ल देखी तो फौरन जान गया कि यही शबस है और उसे अंदर बुला लिया गया। शबस ने दरबार में आकर अपनी शिकायतें सुनाईं। कूफी रुअसाए जो अब मुसब के पास जमा हो चुके थे अपने जख्म खुर्दा किस्से सुनाते और सर उठाकर कहते कि हम बेहद मजलूम हैं, यहाँ तक कि हमारे ही गुलाम और मजदूर हम पर हमला आवर हो गए हैं। आप हमारी मदद करें और मिलकर मुख्तार के खिलाफ फौज निकालें। उनकी जबानों में शिकवा और दिलों में भड़कती हुई नफरत साफ महसूस हो रही थी। मुख्तार ने एक दौर में कूफा और उसके आसपास के इलाकों की हुक्मरानी अपनी मर्जी से अपने कब्जे में ले ली थी, हत्ता कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के नुमाइंदों से हुकूमत छीन ली। इसके अलावा वो कई खूनरेज आमाल और दुश्मनियों का मुर्तकिब भी रहा था, जिनकी वजह से इब्ने जुबैर का खानदान सख्त गुस्से में था। खास तौर पर उसके भाई मुसब बिन जुबैर ने बहुत अरसे से इस बदले का ख्याल दिल में पाल रखा था। जब कूफा के सरदारों ने मिलकर मुसब को उकसाने का फैसला किया तो मुसब ने फौरन एक ताकतवर लश्कर लेकर कूफा की तरफ रुख कर दिया। मुख्तार ने भी देर न की और अहमर बिन शुमैत और अब्दुल्ला बिन कामिल को अपनी फौज की क़ियादत सौंपी। मगर जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो जंग का तवाज़ुन मुख्तार के हक में ना रहा। अहमर बिन शुमैत और अब्दुल्ला बिन कामिल दोनों शहीद हो गए और बसरियों ने मुख्तार की फौज को कुचलकर बिखेर दिया। फतह के बाद मुसब ने अब्बाद बिन हसीन को ताक़ुब पर भेजा और हुक्म दिया कि जितने भी कैदी मिले उनकी गर्दन ठोको। इसी तरह मोहम्मद बिन अशद कूफी को भी अबाद कूफियों के साथ भेजा गया कि वो इब्ने शमैत की टूटी हुई फौज का पीछा करे और दिल खोल कर बदला ले। बसली लोग कूफियों से सख्त गिर थे, जो हाथ आता बेदरेग मौत के घाट उतार देते। कोई कैदी उनके रहम की पनाह में ना बचा। जब मुख्तार को यह खबर पहुंची कि उसके सिपा सालार लड़ते लड़ते हलाक हो गए हैं और उसकी फौज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है तो उसने ठहर कर कहा, मौत का आना एक लाजिम बात है और जिस मौत में मैं मरना चाहूं वो वही मौत है जो इब्ने शमेद के साथ हुई। जब मुख्तार को खबर मिली कि मुसब बिन जुबैर की फौज खुश्की और पानी दोनों रास्तों से भरती हुई उसके करीब पहुंच चुकी है तो उसने भी कूफा से कूच किया और सिलजीन के मकाम पर खैमा जन हुआ। सिलजीन वो जगह थी जहां कई दरिया एक दूसरे से गले मिलते थे। दरियाए हीरा, दरियाए सिलजीन, दरियाए कादसिया और दरियाए परसफ, ये सब फरात से निकलकर यहां आकर एक संगम बनाते थे। मुख्तार ने चालाकी से वहीं एक बंद बनवा दिया ताकि दरियाए फरात का बहाव रोक दे। जैसे ही बंद बंधा, फरात का पानी दूसरे दरियाओं में चढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि मुसब की फौज जो कश्तियों में सवार आ रही थी अचानक दलदल में फंस गई। जब कश्तियों का चलना नामुमकिन हो गया तो बसरी सिपाही मजबूर होकर प्यादा हो गए और कीचड़ में से गुजरने लगे। उनका अगला दस्ता फरात के बंद तक पहुंचा और उसे तोड़ दिया। बंद टूटते ही पानी का जोर टूट गया और वो सीधे कूफा की समत बढ़ने लगे। मुख्तार को जब खबर मिली कि दुश्मन का रिसाला बंद गिराकर आगे बढ़ाया है तो उसने भी मुकाबले के लिए पेशकदमी की। वो हरूरा के मकाम पर पहुंचा जो बसरा और कूफा के दरमियान सरहदी हद फासिल थी।
और वहीं मोर्चे बंधवाए। उसने कसर और मस्जिद को मजबूत किया और किले में वो सब सामान जमा करा लिया जो किसी लंबे मुहासरे में दरकार हो सकता था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, मगर दिल जानता था कि हालात उसके खिलाफ हो चुके हैं। कुछ ही देर में मुसब भी हरूरा पहुंचा। जंग की आग भड़क उठी। नेज़ों के टकराने की आवाजें फिजा में गूंजने लगीं और तलवारों की चमक आंखों को खैरा करने लगी। मुसब की फौज में मोहम्मद बिन अशथ भी मौजूद था, वही कूफी सरदार जिसने पहले बसरा जाकर मुसब को जंग पर आमादा किया था। अब वो अपने लश्कर समेत मैदान में मारा गया, मगर मुख्तार की फौज को इस कुर्बानी से ज्यादा फायदा न हुआ। मुसब के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमले किए और मुख्तार के सिपाही बिखरने लगे। शिकस्त की लहर फैल गई। जब तक लड़ने का दम रहा, मुख्तार खुद तलवार लिए मैदान में डटा रहा। वो लड़ता रहा, जख्मी होता रहा, मगर कदम पीछे न हटाया। आखिरकार जब सिपाह बिल्कुल टूट गई तो वो भी पसपाह होने पर मजबूर होकर कूफा लौटकर कसरे इमारत में किलाबंद हो गया। अगले दिन वही टूटी फूटी फौज जो जान बचाकर भागी थी कूफा पहुंची। उनके चेहरों पर मायूसी और शिकस्त के साए थे। उन्हीं में से एक अफसर ने आगे बढ़कर मुख्तार से कहा, ए अमीर, क्या आपने हमें नहीं कहा था कि आप पर वही नाजिल होती है, कि हमें आसमानी पैगाम मिला है कि हम दुश्मन को शिकस्त देंगे? फिर ये क्या हुआ? मुख्तार ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर निहायत ठहरे हुए लहजे में कहा, क्या तुमने किताब खुदा में ये आयत नहीं पढ़ी? अल्लाह जिस कौम को चाहे मिटा देता है और जिसे चाहे बाकी रखता है। सब कुछ उसके कब्ज़ा कुदरत में है और लौहे महफूज में लिखा हुआ है। कूफा की फिजा में धूल उड़ रही थी। बाजारों के दरवाजे बंद थे और शहर की गलियों में सिर्फ डर के साए घूम रहे थे। मौसिब बिन जुबैर की फौज शहर में दाखिल हो चुकी थी। 30,000 का लश्कर जो मुख्तार के साथ हरूरा से निकला था, अब मुट्ठी भर रह गया था। कुछ मैदान में काम आए, कुछ रात की तारीकी में घरों में रोपूश हो गए और जो बचे वो कसरे इमारत के अंदर कैद हो गए। 4 महीने, पूरे 4 महीने किलाबंद सिपाही भूख और प्यास से लड़ते रहे। बाहर मौसिब के दस्ते पहरा दे रहे थे। अंदर मुख्तार अब भी हर सुबह किले के दरवाजे से निकलकर दुश्मन पर छापा मारता और फिर वापस लौट आता, गोया शिकस्त उसके कामूस में थी ही नहीं। शहर के लोग जो कभी उससे डरते थे, अब कसर की दीवारों पर चढ़कर पत्थर और कीचड़ फेंकने लगे। वक्त ने वफादानियों के चेहरे बदल दिए थे। रात गहरी हो चुकी थी। चराग मध्यम जल रहे थे और कुएं के गिर्द चंद सिपाही प्यास से निढाल बैठे थे। सिपाही बोला, अमीर कूफा, पानी खत्म हो गया है, कुएं में सिर्फ कड़वा पानी बचा है। मुख्तार बोला, पानी नहीं मगर ईमान अभी बाकी है। दूसरा सिपाही बोला, ईमान प्यास नहीं बुझाता आका, जिस्म भी तो खालिक की अमानत है। मुख्तार लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, बैतुल माल में शहद है, उसे कुएं में डाल दो। अगर पानी कड़वा है तो हम उसे मीठा कर लेंगे। हमारी प्यास का फैसला खुदा करेगा, दुश्मन नहीं। सिपाहियों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, मगर हुक्म की तामील की। शहद से कुएं का पानी मीठा हुआ और वो लम्हा भूख और प्यास के दरमियान ईमान की आखिरी चमक बन गया। मौसिब के पहरे सख्त हो चुके थे। औरतों का किले तक आना बंद कर दिया गया। जो भी नज़दीक आती उससे नाम और गर्ज पूछी जाती। फिर भी कुछ औरतें जान हथेली पर रखकर अपने शौहरों तक खाना पहुंचाती। एक रोज चंद औरतें पकड़ी गईं। जब मौसिब के सामने लाई गईं तो एक बोली, हम सिर्फ रोटी देने आई थीं, बगावत नहीं। मौसिब ने उन्हें देखा, फिर सिपाहियों से कहा, जाने दो, भूख की जंग में औरतें दुश्मन नहीं होती। दूसरे रोज दोपहर के वक्त किले की फसील पर शोर मच गया। बाजार के चंद नौजवान जो बसरा से आए थे मुख्तार को गालियां दे रहे थे। मुख्तार छत पर आया, चेहरे पर गर्द, आंखों में बिजली। मुख्तार गरजदार आवाज में चिल्लाया, ऐसा लगता है तुम में कोई सरदार नहीं, वरना ये जुबान की गुस्ताखी जिंदा ना रहती।
फिर उसने अपने दस्ते की तरफ देखा। दरवाज़ा खोलो, आज हम इनके गुरूर को ज़मीन दिखाएंगे। धूल उड़ी, दरवाज़ा खुला और मुख्तार 200 सिपाहियों के साथ निकल आया। घोड़ों की टापों ने बाजार की ईंटें हिला दी, तलवारें चमकी और लम्हों में फिजा चीखों से भर गई। 100 के करीब दुश्मन वहीं गिरे, बाकी भागते भागते भी मारे गए। किले की दीवारों पर मुख्तार खड़ा था, सांस भारी मगर निगाह अटल। सिपाही, अमीर, आज भी फतह हमारी है। मुख्तार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फतह नहीं, ये आखिरी सांसें हैं, मगर मैं चाहता हूं ये सांसें भी मैदान में निकलें, कैद में नहीं। कसर के सहन में खामोशी थी, हवा जैसे रुक गई हो। चेहरे मिट्टी से अटे, आंखों में भूख और दिल में खौफ। 4 माह के मुहासरे में सिपाहियों के हौसले चूस लिए थे। मुख्तार किले के बुलंद जीने पर चढ़ा, उसकी आवाज खामोश फजा को चीरती हुई फैली। मुख्तार, ऐ कूफा के सिपाहियों, याद रखो, जितना तवील मुहासरा होगा उतनी तुम्हारी हिम्मत टूटेगी। अब वक्त आ गया है कि किले के दरवाजे खोल दो और खुले मैदान में मर्दों की तरह लड़ो। अगर आज हमने तलवार ना उठाई तो कल तारीख हमारे नाम से नफरत करेगी। सिपाहियों ने नजरें झुका लीं। कहीं से एक मध्यम आवाज उठी, सिपाही, अमीर, हम भूख से निढाल हैं, तलवार उठाने की सकत नहीं रही। हमें अमान की कोई राह सूझती है, जंग की नहीं। मुख्तार ने तड़प कर तलवार जमीन पर मारी। मुख्तार, खुदा की कसम, मैं किसी जालिम के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो याद रखना तुम्हारे सरों से इज्जत भी छिन जाएगी। और जब दुश्मन तुम्हें ज़बा करेगा तुम एक दूसरे से कहोगे, काश हमने मुख्तार का कहा मान लिया होता। वो लम्हा तारीख का कर्बनाक मोड़ था। हजारों सिपाहियों में से सिर्फ 19 आगे बढ़े। 19 चेहरों पर वही अज़्म था जो कभी कूफा की गलियों में गूंजा करता था। मुख्तार आहिस्तगी से, तुम वो हो जो मौत से आंख मिलाने आए हो, आओ इज्जत के साथ चलते हैं। उसने अतर अपने लिबास पर छिड़का, चेहरा धोया और किले के दरवाजे की सिमत बढ़ा। दरवाजा चरचराते हुए खुला, धूप का सैलाब अंदर उमड़ आया। किले के बाहर मैदान कूफा में दुश्मन सफ बस्ता खड़ा था। मसब के लश्कर के शोर में तलवारें बज रही थीं। मुख्तार के 19 सवार घोड़ों पर सवार हुए। साहिब बिन मालिक ने रुके हुए लहजे में कहा, अमीर, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे दिल ने जवाब दे दिया है। मुख्तार ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से बोला, जा, मगर याद रख, मैदान छोड़ने वाले का साया भी बुज़दिल होता है। साहिब अलग हो गया और बाकी 18 सवार मुख्तार के साथ दुश्मन की सिमत बढ़े। ढोल बजा, नारा बुलंद हुआ और घोड़ों की टापों से जमीन कांपी। तलवारों की चमक आंखों को खेरा कर गई। चंद लम्हों में हर सिमत खून के छींटे थे। एक एक करके उसके साथी गिरते गए। मुख्तार तन्हा रह गया। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ए परवरदिगारे हक, मैंने जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई थी। अगर मैं गुमराह था तो ये मेरा अंजाम काफी है। फिर वो दुश्मन के दरमियान जा घुसा। तलवारें उसके जिस्म में धंस गईं और वो अपने साथियों के लाशों के ढेर पर गिर पड़ा। वक्त ठहर गया। कूफा की जमीन पर एक और ख्वाब दफन हो चुका था। किले के अंदर अब खामोशी का राज था। दूसरे दिन मुख्तार का अफसर मीर बिन अब्दुल्ला अली बची खुची फौज के सामने आया। ऐ कूफा वालो, अब वक्त है इज्जत की मौत मरने का। बाहर निकलो, लड़ो कि दुश्मन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मगर वही सिपाही जो कल तलवार से डरते थे आज भी खामोश खड़े थे। एक सिपाही, हम थक गए हैं मीर, हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। और यूं वो सब किले के दरवाजे पर दुश्मन के हवाले हो गए। बसरी फौज ने उन्हें पाबाजोला कैद किया और मसब के सामने लाया गया। मजमे में खामोशी छा गई। मसब के हुक्म का इंतजार था। इसी लम्हे एक शख्स आगे बढ़ा, खैर बिन अब्दुल्ला मक्की।
तमाम हम्दो सना उस खालिक के लिए है जो आज तुम्हें आजमाइश में डाल रहा है कि तुम माफ करते हो या इंतकाम। ए इब्ने जुबैर, हम तुम्हारे ही कबीले के लोग हैं, काफिर या तुर्क नहीं। अगर आज तुमने दरगुजर किया तो खुदा तुम्हें इज्जत देगा। मसहब ने सर झुका लिया। मजमे में एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया। चंद आंखें भीग गईं। मसहब के होंठों से आहिस्ता सा निकला, मैं इन्हें छोड़ देना चाहता हूं। मगर वही कूफी सरदार जिनके दिल नफरत से भरे थे अचानक खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद, अमीर, या तो इन पर रहम करो या हम पर। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बाप, हमारे भाई मारे। मसहब के चेहरे पर फैसला सख्त हो गया। उसने निगाह उठाई और कहा, फिर खून का कर्ज खून से अदा होगा, सबको कत्ल कर दो। शोर बुलंद हुआ, तलवारें खनकीं। 6000 कैदी चंद लम्हों में जमीन पर गिर चुके थे। कूफा की गलियां फिर से खून में नहा गईं। कसर के बाहर धूप खून की तरह फैली हुई थी। जमीन पर पड़ी लाशों के बीच मुख्तार का जिस्म साकित था, मगर चेहरे पर अब भी वही जलाल, वही वकार, जैसे अभी उठकर तलवार संभाल लेगा। मुसब के हुक्म पर सिपाहियों ने उसके दोनों हाथ काटकर मस्जिद के दरवाजे के पास कीलों से ठोंक दिए। खून टपक रहा था और हवा में एक अजीब सा सुकूत तैर रहा था। मुसब खामोश खड़ा लाश को देख रहा था, फिर बोला, यह था वो मुख्तार जिसने नबूवत का दावा किया, जिसने कूफा में आग लगाई। एक सिपाही बोला, अमीर, क्या हुक्म है? मुसब ने सर झुकाकर कहा, लाश को वहीं रहने दो ताकि लोग देखें कि झूठा नबी कैसे मरता है। इसी लम्हे पर्दा हटा और 2 औरतों को पेश किया गया। एक साबित बिनते समरा, चेहरे पर होशियारी की झलक, और दूसरी उमरा बिनते नौमान, निगाहों में अज़्म, आंखों में आग। मुसब ने सवाल किया, तुम दोनों अपने शौहर के दावे के बारे में क्या कहती हो? क्या तुम भी उसके नबी होने पर ईमान रखती थी? साबित ने जल्दी से झुककर कहा, अमीर, हम औरतें अपने मर्दों के साथ रहती हैं, मगर उनके अकाइद पर हमारी राय बेमानी है। आपकी राय ही बरहक है। मुसब ने इशारा किया, इसे छोड़ दो। फिर उसने उमरा की तरफ देखा, और तुम्हारा क्या कहना है? उमरा ने सर उठाया। उसकी आवाज में वो ठहराव था जो तूफान से पहले आता है। मुख्तार खुदा के नेक बंदों में से था। उसने जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद किया, कमजोरों को ताकत दी। अगर उसने कुछ कहा तो वो अपने ईमान के जोश में कहा, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसका दिल कैसा था। मुसब के माथे पर शिकने गहरी हो गईं। तो तुम उसकी तायीद करती हो, उसको नेक कहती हो? उमरा ने आगे बढ़कर कहा, मैं उसकी बीवी हूं। मैंने उसके चेहरे पर रातों की इबादत देखी है। मैंने उसके दिल से निकलती हुई वो आहें सुनी हैं जो दुनिया के किसी झूठे के सीने से नहीं निकल सकती। अगर तुम उसे मुर्तद कहते हो तो तुम्हारे फैसले के सामने मैं भी कैदी सही, मगर मेरी जबान गुलाम नहीं बनेगी। मुसब का लहजा बर्फ बन गया। इसे कैद खाने में ले जाओ और अपने भाई अब्दुल्ला बिन जुबैर को लिखो कि ये औरत मुख्तार को नबी मानती है। हुक्म क्या है? कुछ दिन बाद जवाब आया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने लिखा, अगर इसका यही अकीदा है तो ये मुर्तदा है, इसे कत्ल किया जाए। रात सियाह थी। हीरा और कूफा के दरमियान वीरान मैदान में सिपाही उमरा को ले आए। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। एक सिपाही मत्र बिन गस्सान आगे बढ़ा, तलवार चमकी। उमरा ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, मैंने मुख्तार से वफा की, अब तुझसे वफा चाहती हूं। 3 ज़रबें लगीं। उमरा जमीन पर गिरी, मगर चेहरे पर अजब सुकून था, जैसे वो फिर से मुख्तार के पहलू में जा सोई हो। दूर से एक मर्द भागता हुआ आया, लब्बान बिन नोमान, उमरा का भाई। वो चीखा, हरामजादे, तूने मेरी बहन को मारा, खुदा तेरा हाथ काटेगा, और गुस्से में मत्र के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। सिपाही उसे घसीटते हुए मुसब के पास ले गए।
मुसब ने उसकी हालत देखी। आंखें सूजी हुई, हाथ कांप रहे थे, मगर दिल जलता हुआ। मुसब ने आहिस्ता कहा, इसे छोड़ दो, ये अपनी बहन का मंजर देख चुका है, इससे बड़ी सजा कोई नहीं। मैदान में अब 2 लाशें थीं, एक मुख्तार की, एक उमरा की। हवा रुकी हुई थी, चांद निकल आया था, जैसे आसमान खुद उनके जनाजे पर रोशनी डाल रहा हो। ये दास्तान अपने अंजाम को तो पहुंच गई, मगर पीछे ऐसे सवाल छोड़ गई जो सदियों से तारीख के सीने में गूंज रहे हैं। ये खाक आलूद जिस्म वही शख्स है जिसने अपने ज़माने को हिला कर रख दिया, जिसने कातिलाने हुसैन अलैहिस्सलाम को अंजाम तक पहुंचाया और खुद एक तूफान बनकर गुजरा। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या वो वाकई नबूवत का दावेदार था, या ये सब महज एक फरेब, एक मुगालता और ज़माने की फैलाई हुई मुबालगा आराई थी? उम्मत आज तक खामोश है और तारीख अभी तक फैसला नहीं सुना सकी। और जब तारीख के इन धुएं में एक नया सवाल झलकता है, तब हम लेकर आ रहे हैं एक और दादखेज दास्तान। पासबाने हरम पेश करता है अकबर बादशाह और दीन इलाही का फितना। आइए इस दफा हम देखेंगे अकबर का उरूज, उसका ख्याल नौ और वो कश्मकश जो इक़्तिदार ने अकीदे के सामने खड़ी कर दी। तैयार हो जाइए एक ऐसी किस्त के लिए जिसमें सवालात जोर से उठेंगे, मुकालमे खंजर बनकर दिल पर चलेंगे और तारीख फिर अपनी चीख के साथ सामने आएगी। आने वाली किस्त में मिलते हैं जहां सच, ताकत और ईमान एक दूसरे के मुंह पर बराह रास्त खड़े होंगे।